Hello dear students. In the last video we just studied the first part of haloalkenes and haloarenes. So these were the topics. The first part was introduction, the second one is just their uses, their classification on the basis of hybridization of carbon etc. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. Now the second part. According to the second part, the first topic will be of nomenclature of halogen compound. So without wasting too much time, we just start the topic. Nomenclature of halogen compounds. So common name of this kind of compound is alkyl halide, but IUPAC name is haloalkane. We have to just follow the same rule as for other IUPAC nomenclature of organic compounds. First of all, we have to count the total number of carbon, and accordingly we can just assign the name. For example, here there is only one carbon, so it will be chloromethane. IUPAC name will be chloromethane. Here it will be 2-iodopropane. 1 2 3 3 carbon is there, that's why it will be 2-iodopropane. Here it's 2-fluoro-2-methyl propane. Okay, and this one 1-chloro-2-methyl propane. Naming of dihalogen derivatives. Dihalogen derivatives, there are actually three types of dihalogen derivatives. The first one, which is commonly known as alkylidene dihalide, जो सबसे पहला टाइप होता है इसको हम commonly alkylidene dihalide बोलते हैं. And this is commonly also known as jam dihalide. Jam dihalide का मीनिंग ये होता है कि both the halogen atom will be attached to the same carbon. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो halogen atoms हैं, here you can see it is dichloromethane. There is only one carbon and both the halogen atom is attached to only this carbon. यहाँ पे तो खैर कोई और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, बट इन दिस एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर कि देयर आर 3 डिफरेंट कार्बन्स बट द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड ओनली टू द सेम कार्बन एटम. सो इस टाइप के डाइहेलाइड्स को हम लोग सिंपली जैम हैलाइड या एल्किलिडीन डाइहेलाइड बोलते हैं. और नॉमेनक्लेचर इसका अकॉर्डिंगली वैसा ही होता है जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर का. यहाँ पे हम क्या बोल देंगे 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन because both the chlorine atom is attached with second carbon, that's why 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. फिर सेकेंड कैटेगरी है विस डाइहेलाइड, जिसको हम एल्किलीन डाइहेलाइड भी बोलते हैं. यहाँ पर जो फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे थे कि बोथ द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन. यहाँ पर ये सेम कार्बन पे नहीं रहेंगे बट दे आर प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू द सेकंड वन. एक कार्बन एटम से अटैच हुआ और दूसरा वाला जो है उसके ठीक नेक्स्ट वाले कार्बन एटम से अटैच होगा. फॉर एग्जाम्पल 1,2-डाइक्लोरोएथेन. यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 1,2-डाइक्लोरोएथेन. थर्ड कैटेगरी इज़ अल्फा डब्ल्यू हैलाइड. इसमें जस्ट नेक्स्ट में नहीं रहता बल्कि ये टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड होते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन. सो दीज ऑल 3 आर द डाइहेलाइड्स बट तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ट्राई हैलोजन कंपाउंड. ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स इन विच 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाई 3 halogen atoms. This is the general formula CnH2n minus 1x3. So trihalogen derivatives of methane are simply known as halo form. Suppose 3 chlorine atom is there, then it will be known as chloroform. 3 bromine atom is there, then it will known as bromoform. Similarly iodoform. Next, tetrahalogen derivative. So there is a presence of 4 halogen atoms like this is tetrachloromethane, जिसमें पूरे के पूरे all 4 hydrogen atoms are replaced by halogen. Now
द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। तो ये कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये हम लोग शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट आइसोमेरिज्म विच इज़ शोन बाई हेलो एल्केन्स आर चेन आइसोमेरिज्म एंड द सेकेंड वन इज़ पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो रिमेंबर वन थिंग कि चेन आइसोमेरिज्म में यू कैन जस्ट चेंज द सीरीज ऑफ कार्बन ओनली, आप कार्बन चेन को बस चेंज कर सकते हो। हियर इट इज़ अ स्ट्रेट चेन एंड हियर देयर इज़ अ ब्रांचिंग, और यहाँ पे ये एक और ब्रांचिंग, बट द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन एटम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ये फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड है। सो दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर देयर मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट their structure is different is known as chain isomerism. So haloalkanes show chain isomerism. The second one is position isomerism. Position isomerism में कार्बन चेन को हमको चेंज नहीं करना है, we can just change the position of halogen atoms. Here in case of first compound it is 1 chloropropane and in the second one it is 2 chloropropane. ठीक है. Now the next topic is नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना इजी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोलर बॉन्ड। व्हाई इट इज़ a polar bond? Because due to electronegativity difference between carbon and halogen, the shared pair of electron lies closer to the halogen atom. As we all know that halogen atoms are more electronegative compared to the carbon one, but there is a bond of covalent. ये जो bond है this is a kind of covalent bond. So according to rule क्या होना चाहिए? Because one electron is from carbon and one electron is from halogen, तो दोनों का जो है इक्वल यहाँ पर शेयरिंग होना चाहिए, बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस हैलोजन attracts the shared electron towards itself and becomes slightly negative in nature. ठीक है, slightly negative charge इस पे आ जाएगा and slightly positive charge will on be carbon atom. So the halogen carries a small negative charge while carbon carries a small positive charge. Consequently क्या होगा? This carbon halogen bond will become polar. ठीक है, जबकि ये है तो कोवेलेंट, तो now it will become polar covalent bond. And what is the order of polarity? And what is the order of bond length? So bond length will be increased from carbon fluorobond to carbon chlorobond to carbon ब्रोमोबॉन्ड टू कार्बन आयोडीन। ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड बॉन्ड एंथैल्पी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा का क्या मतलब हुआ? कार्बन एंड हेलोजन एटम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मेंशन भी किया है कि यू कैन सी हियर द बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन एंड आइडोमेथेन। आप देख सकते हो इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट बॉन्ड एंथैल्पी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है। बट डाइपोल मोमेंट में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमेथेन इज स्लाइटली लोअर देन क्लोरोमेथेन। ठीक, उसके बाद तो फिर ये डिक्रीज ही हो रहा है। So sometimes question is asked that why chloromethane is more polar compared to fluoromethane, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज़्यादा होती है। सो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। As we move from fluorine to iodine, the electronegativity of halogen decreases. Therefore, polarity of carbon-halogen bond and hence the dipole moment of द हेलोएल्कीन्स शुड ऑल्सो बी डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो डिक्रीज तो होती है लेकिन सिर्फ, बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमेथेन इज स्लाइटली लोअर देन क्लोरोमेथेन। Now what is the reason? The reason behind that, although the magnitude of negative charge on fluorine atom is much more higher, but the smaller size of fluorine, due to the smaller size of fluorine as a compound of chlorine, the chlorofluoro bond distance is so smaller. बहुत छोटे साइज होने के कारण ये डिस्टेंस क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। दैट प्रोड्यूसेस चार्ज एंड
डिस्टेंस। तो अब ये जो द प्रोडक्ट ऑफ जो चार्ज और डिस्टेंस का है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम ऐसे ही निकालते हैं ना, चार्ज इनटू जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है वो, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली फ्लोरीन के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. So let's start method of preparation. There are many methods to prepare haloalkanes, but haloalkanes are widely prepared by using alcohol. अब ये अल्कोहल से हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज अल्कोहल से हम कई मेथड से बना सकते हैं, मीन्स देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ haloalkane by using alcohols. So the most convenient method for preparation of haloalkane involve the substitution of OH group and introduction of halogen atom. ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, this OH group is replaced and this halogen group adds. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है by the action of halogen acid. It's very simple. Alcohol produces alkyl halide on reacting with halogen acids. The order of reactivity of halogen is HI is more reactive than HBr than HCl. ठीक है, and order of the reactivity of alcohol tertiary then secondary then primary. अब ये हमने order of reactivity तो लिख दिया, but what is the reason behind that? इसके पीछे का रीज़न क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. Actually this is a nucleophilic substitution reaction. Why it is nucleophilic substitution reaction? Because a nucleophile is going to attack. कैसे ये nucleophilic substitution हुआ, हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हेलोजन एसिड के साथ. So there is a H plus ion and a negative halogen ion. तो ये जो OH है इसको बाहर निकालने का काम कौन करने वाला है, दिस प्रोटॉन. ठीक है, तो ये जो OH है विच इज़ अ लीविंग ग्रुप, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप. मतलब ये कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. वाई, बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ. ये है. ठीक है, तो अब ये H प्लस जो है वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ROH2 and oxygen carries positive charge. Now this halide ion will come and attack on the alkyl group and this this H2O will leave and you will get alkyl halide. Since the nucleophilicity of the halide ion decreases in the order iodide, then bromide, then chloride, in the order of the reactivity, the order of the reactivity of halogen acid decreases in the same order. अब ये nucleophilicity क्या है, it is a tendency to donate a pair of electron to the carbon atom. तो सबसे easily कौन pair of electron donate करेगा, iodide. Why? because इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है. तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजीली डोनेट करेगा. तो इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ हाई, इसकी उससे कम है, क्लोराइड की उससे भी कम है. तो जो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यही हो जाएगा, HI विल बी मोर रिएक्टिव, HBr उससे थोड़ा कम एंड HCl उससे और कम. ठीक, वेयर एज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हम लोग को मालूम है कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो टर्शरी इज़ हाईली स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. तो अकॉर्डिंगली अल्कोहल में भी आपको सेम रिएक्टिविटी जो है का ऑर्डर देखने को मिलेगा. सो टर्शरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा. ये लोग अनस्टेबल बनाएंगे, तो ये इसी फॉर्म में रहना चाहते हैं बिकॉज इनका कार्बोकैटायन कैसा है, अनस्टेबल है. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. सो हियर इज़ द एग्जाम्पल. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पर आप जितने कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे एग्जैक्टली द सेम कार्बन अल्किल हैलाइड विल बी फॉर्म. This is the secondary alcohol
Here also it's reacting with HCl in presence of anhydrous zinc chloride, it's giving 2-chloropropane. ठीक, अब ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है इसकी प्रेजेंस से होता क्या है, एक्चुअली दिस जिंक क्लोराइड हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. कैसे हेल्प करता है ये, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एक्चुअली जो जिंक क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और ये वहाँ पर जाके उसको उस पर अटैक करता है और स्लाइटली अटैच्ड होता है जहाँ पर भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है. तो ये जाके कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड को वीकेन करने का काम करता है, जिससे लिविंग ग्रुप दैट इज़ आवर OH ग्रुप ईजिली उस बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक हो जाए और वो उसको लेफ्ट करके आगे बढ़ जाए और हम क्लोरीन या ब्रोमीन या वॉट एवर हेलोजन वी आर टेकिंग वो वहाँ पर जाकर अटैक हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ टर्शरी अल्कोहल. अभी देखिए टर्शरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पर हमको जिंक क्लोराइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. अगर हमको ब्रोमीन डेरिवेटिव बनाना है तो हमको ब्रोमीन डेरिवेटिव के लिए H2SO4 लेना पड़ता है और रिफ्लेक्स, अभी HCl में रिफ्लेक्स नहीं कराना पड़ रहा था. रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, वी हैव टू बॉयल एंड फॉर्म अ स्टीम. स्टीम बनने के बाद उसको कंडेंस करके क्या करेंगे, फिर से लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे. सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क विथ कंडेंसर सो दैट द वेपर आर कंडेंस्ड बैक टू द फ्लास्क इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिंग. उसी को ही हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रोमो डेरिवेटिव बना सकते हैं. आयोडोएल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग ए सुटेबल अल्कोहल विथ कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड ऑफ सोल्यूशन 57%. हम इसका क्या कर सकते हैं, आयोडो डेरिवेटिव भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. द नेक्स्ट मेथड इज़ बाई फॉस्फोरस हैलाइड. फॉस्फोरस हैलाइड में PX3 और PX5 के साथ रिएक्ट करा के एल्किल हैलाइड प्रिपेयर किया जा सकता है. दीज आर द एग्जाम्पल वेयर वी आर टेकिंग फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड गेटिंग क्लोरोमेथेन, साथ में यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड भी बन रहा है. सिमिलरली इफ़ वी आर टेकिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देन वी आर गेटिंग क्लोरोएथेन, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बन रहा है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3. बट रिमेंबर वन थिंग कि ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. ये जो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोमो और आयोडो, देखो क्लोरो जो है वो थोड़ा इजीली बन जाता है, बट ब्रोमो और आयोडो के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन को रिएक्ट करा के फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड ये सब बनाना पड़ता है. आफ्टर दैट फिर रिएक्शन करवाते हैं बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव. द लास्ट वन इज़ बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड. अब यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ pyridine it just converted into alkyl halide and also give sulfur dioxide and HCl. Okay, so thank you for this class, and today's class is over here. In the next class we will study the next topics. So thank you, have a nice day, keep watching.